Hello students, welcome to the English classes for classes 9th. I am Mrs. Sangeeta Saxena and today we will be going forward with a further part of the chapter, that is the fourth chapter of your supplementary reader, that is The Kingdom of Fools. So in the last turn we did till the part where the lady was called, the dancing lady was called, and she said that it was not her fault, but that goldsmith whom she gave her jewelry, he called her every now and then to take her jewelry. So now the goldsmith has been called to the court. So let's see what happens. The king's bailiffs searched for the goldsmith, who was hiding in the corner of his shop. When he heard the accusation against him, he had his own story to tell. "My lord," he said, "I am a poor goldsmith. It's true I made this dancer come many times to my door. I gave her excuses because I couldn't finish making her jewelry before I finished the rich merchant's orders. They had a wedding coming and they wouldn't wait. You know how impatient rich men are." So now what happens, the king's bailiffs search for the goldsmith. किंग के राजा के जो आदमी थे उन्होंने they started searching for the goldsmith, for the goldsmith means सुनार. So who was hiding in a corner of his shop, वो अपने शॉप के एक कॉर्नर में छुपा हुआ था. When he heard the accusation against him, he had his own story to tell. तो जब उसने अपने खिलाफ ये इल्ज़ाम सुने, accusation का मतलब जो भी आपके ऊपर जो चार्जेस लगाए गए होते हैं, जो आपको जिस चीज़ के लिए अक्यूज़ करा गया है, जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं, ठीक है. When he heard the accusations against him, he had his own story to tell. तो फिर उसने अपनी ही अलग एक कहानी सुनाई. "My lord," he said, "I am a poor goldsmith." वो कहता है कि हे राजन, मैं एक गरीब सुनार हूँ. "It's true I made this dancer come many times to my door." तो वो कहता है ये सही बात है कि मैंने इस डांसर को बहुत बार अपने डोर पे बुलाया और मैंने इसको बहुत एक्सक्यूज़ेस भी दिए क्योंकि मैंने इसकी ज्वेलरी ख़त्म नहीं करी थी. ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो रिच मर्चेंट था उसके ऑर्डर्स मुझे पहले ख़त्म करने थे और उन लोगों के घर में कोई शादी आ रही थी और उन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करा था कि तुम पहले मेरे ऑर्डर्स ख़त्म करो. एंड यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर. और आपको तो पता ही है कि जो जितने भी अमीर लोग होते हैं वो कितने इम्पेशेंट होते हैं, मतलब कितने उतावले होते हैं अपने हर काम को कराने के लिए. "Who is the rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry? Made her walk up and down, which distracted this bricklayer, which made a mess of his wall, which has now fallen on an innocent man and killed him. Can you name him?" तो ये राजा कहता है कि ये रिच मर्चेंट कौन है जिसने कि तुमको ये तुम्हारी ये जो ज्वेलरी थी वो ख़त्म करने से रोक लिया और जिसकी वजह से इस लड़की को यहाँ से वहाँ भागना पड़ा, क्योंकि जिसकी वजह से जो ब्रिक लेयर था वो भी डिस्ट्रैक्ट हो गया और जिसकी वजह से वॉल ख़राब हो गई, जिसकी वजह से ये इंसान मर गया. तुम उसका नाम बताओ मुझे. द गोल्डस्मिथ नेम्ड द मर्चेंट, and he was none other than the original owner of the house, whose wall has fallen. Now justice has come full circle, thought the king, back to the merchant. When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying, "It wasn't me but my father who ordered the jewelry. He is dead, I am innocent." तो now what happens कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो चोर होता है, चोर मर जाता है, उसका भाई आता है, वो मर्चेंट को बुलाता है कि इसकी वॉल गिरी, इसको आप पकड़ो. ठीक है, मर्चेंट कहता है उसकी गलती नहीं थी, जिसने वॉल बनाई थी उसकी गलती थी. ब्रिकलेयर आता है, ब्रिकलेयर कहता है उसकी गलती नहीं थी, उस लड़की की गलती थी जो ऊपर नीचे जा रही थी तो मैं वॉल नहीं बना पाया. तो लड़की को बुलाया जाता है. अब जब लड़की आती है तो लड़की ये कहती है कि मेरी गलती नहीं थी, उस गोल्डस्मिथ की गलती थी, उस सुनार की गलती थी जो मेरी ज्वेलरी मतलब बनाने के लिए जिसको मैंने दी थी और वो मुझे मेरी ज्वेलरी नहीं दे रहा था. तो फिर ये गोल्डस्मिथ आता है. फिर गोल्डस्मिथ ये कहता है कि जो एक रिच मर्चेंट था, वो रिच मर्चेंट जो था उसने मुझे बहुत परेशान करा था कि तुम पहले मेरा काम करो वरना मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा. तो ये मेरी गलती नहीं है, उस रिच मर्चेंट की गलती है. फिर वो जो रिच मर्चेंट होता है जब एंड में गोल्डस्मिथ से पूछते हैं और सुनार से पूछते हैं कि उस गोल्डस्मिथ का नाम क्या था, तो वो गोल्डस्मिथ जिसकी दीवार गिरी होती है, जिस मर्चेंट की दीवार गिरी होती है उसी का पापा होता है. मतलब कि वो उसी घर का होता है जिस घर में ये एक्सीडेंट हुआ था. तो नाउ व्हाट द किंग थिंक्स.
He thinks the goldsmith named the merchant, and he was none other than the original owner of the house whose wall has fallen. So now the king thinks that justice has come full circle, कि मतलब justice जो है वो पूरा अब पूरी हो चुकी है. It has come full circle, मतलब कि अब देखो जहाँ से हम शुरू हुए थे हम वहीं आ गए, हमको अब पता है कि culprit कौन है. ठीक है. Now justice has come full circle, thought the king, back to the merchant. तो अब ये merchant के ऊपर ही फिर से ये आपका accusation आ चुका है. When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying. तो जब उसको मर्चेंट को वापस से बुलाते हैं कि तुम फिर से कोर्ट में आओ, तो वो ना रोते रोते आता है, कोर्ट में रोते रोते आता है और कहता है, इट वॉजेंट मी बट माई फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, ही इज़ डेड, आई एम इनोसेंट. तो वो कहता है कि ये जो था ना कि ये जो ऑर्डर दिया गया था ज्वेलरी का, ये मैंने नहीं करा था, ये मेरे पापा ने करा था, और अब तो वो मर चुके हैं, तो अब मैं क्या ही करूँ, मैं तो इनोसेंट हूँ. This is what the merchant says. So now we have come to know that who was the culprit and what all happened in the court. So in the next turn, we'll see what happens further, what the king orders. So that's all for today. Have a nice day.